October November 2019, variant 11. So let's start. Look at question number 1. What is correct for a normative statement? Remember, normative statement कौन सी होती है? That are opinion based statement. It is objective and based on fact. It is objective and can be proved correct. It is subjective and based on opinion. It is subjective and can be reliably tested. हाँ भाई, कौन सी है correct definition of normative? C होगा. ये subjective भी है और based on opinion है. अगर reliably tested हो जाएगी तो फिर वो positive हो जाएगी. What does production possibility curve shows? हाँ भाई. D. The maximum output that can be exported. Sir, D. The maximum output of 2 or more goods in an economy. PPC क्या show करता है? Yeah, the maximum output of 2 goods that can be produced in an economy for the amount of input given. So it should be D. Look at question number 3. In Zimbabwe, there is hyperinflation. Which two functions of money might the Zimbabwe dollar be most likely to have still performed? Hyperinflation होना, prices बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन दो functions of money ऐसे जो अभी भी hold कर रहे होंगे. B, sir, B. B. Why D? Sir, B. B क्या है? Standard of deferred payment. देखो, जब भी आपके hyperinflation होता है ना, your money will lose the standard of deferred payment, क्योंकि फिर जो है वो आप rather than credit terms पे आप transactions नहीं करते. जिम्बाब्वे में credit terms पे transactions नहीं होती, because लोगों को ये पता है कि आज अगर हमने डील कर ली और हमें कल पैसे मिलेंगे तो कल मनी वैल्यू और नीचे चली जाएगी. So B is incorrect. तो स्टोर भी नहीं कर सकते ना फिर, तो मतलब स्टोर करेंगे उनको पता है कि वो डेप्रिशिएट ही हो जा रही है. अगर आपके हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो लोग फिर पैसे स्टोर थोड़ी करते हैं. दे यूज फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. जैसे लोग यहाँ पे भी, अब पाकिस्तान में भी हो रहा है कि लोग हेज करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं या कहीं और गाड़ियों में पैसे लगाते हैं. सो द टू फंक्शंस ऑफ मनी दैट विल होल्ड आर यूनिट ऑफ अकाउंट. जाहिर है फिर भी चीजें तो फिर भी पैसों में ही मेजर होंगी, जितना भी महंगा हो जाए चीजें. द सेकंड वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट हो सकती है. जिम्बाब्वे में स्टिल people use wheelbarrow in order to carry money to buy a loaf of bread, but still the Zimbabwe dollar can be exchanged. They are acceptable. Sayyidi, is that clear? Yes. So you look at question number 4. The diagram shows the production possibility curve XX and YY. What would cause a movement from XX to YY? Basically, there is an outward shift of the PPC. आपका जो PPC है वो out क्यों होगा? A decrease in scarce resources, a decrease in the cost, and increase in the cost of labor and increase in the labor force. D होगा. सही कि आपकी labor force increase कर गई. Basically, whenever there is improvement in the productive capacity or factors of production, your PPC will go up. Look at question number 5. The table shows the market demand and market supply for bananas over a year. At a market price of $8 cents per kg, there is a disequilibrium in the market. Market में disequilibrium है. सही है भाई. 8 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? Demand है 600, supply है. So there is a shortage. 150 million की shortage है. What action would the government have taken to achieve the market equilibrium at price 8? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाए प्राइस 8 पे, तो गवर्नमेंट कौन सा एक्शन लेगी? हाँ भाई. What would the government do to either encourage the supply or reduce the demand? क्योंकि गवर्नमेंट को मार्केट पे लेकर आने हर हाल में, इक्विलिब्रियम लेकर आने. सर ए तो सर सब्सिडी तो नहीं दे सकते ना, कि उनको सब्सिडी इतना तो इंक्रीज नहीं करेगी.
देखो ना सब्सिडी देंगे तो सप्लाई इंक्रीज करेगी. If there is provision of subsidy, सही है. अगर मैंने $2 की सब्सिडी दे दी, प्रोड्यूसर को अपनी जेब से पैसा दे दिया, प्रोड्यूसर्स के लिए प्राइस क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर विल रिसीव अ प्राइस ऑफ 10 cents. सही है. और 10 cent में सप्लाई कितनी है? 600. This will be equal grant a subsidy of 2 cents. अगर एक $2 2 cent की सब्सिडी मिलेगी, अभी जाके मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी. डी वाले का मतलब क्या हुआ? रेशन कंज्यूमर्स टू 75 kg पर है, मतलब कि कंज्यूमर्स को 75 kg अलाउ करो सिर्फ. सही है. In calculating a short-term supply schedule for a farm, what is assumed to remain unchanged? कौन सी चीज unchanged रहती है शॉर्ट रन में? State of technology. State of technology. सही है. State of technology evolves in very long run. सही है. So yeah, the number of consumers can vary in the short run. Price of the good will obviously vary. क्योंकि आपका सप्लाई स्केड्यूल में ये होता है ना, प्राइस ऊपर होगा, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर जाएगी, और रॉ मटेरियल भी वेरी हो सकता है. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल नॉट. टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सप्लाई का भी शिफ्ट आउट हो जाएगा. The graph supply for an industry. What would cause a shift in the supply curve from from S1 to S2? पीछे जा रहा है भाई सप्लाई कर्व. हाँ भाई. An increase in the number of farms? नहीं, सप्लाई बढ़ जाती है. An increase in the number of workers employed, इससे भी सप्लाई बढ़ती. An increase in productivity से भी सप्लाई बढ़ती. Yeah, good job. D होगा. An increase in the wages paid. Wages paid बढ़ेंगी, सप्लाई कम हो जाएगी. Cost of production will increase. अगला देखो, the diagram shows the outcome when a landowner who has allowed motorists to park on his field at no cost introduces a parking charge of $1. अब वो $1 ले रहा है. What is the loss of consumer surplus? Consumer surplus में loss क्या होगा? Why? देखो पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था? When he was not forcing a price, जब कोई भी प्राइस नहीं था, प्राइस था जीरो पे ये डिमांड थी. सही है. Why Z होगा था? एक मिनट ना, जीरो पे डिमांड ये थी, लेकिन स्पेस फिर भी लिमिटेड ही थी पार्किंग की. XY था पहले. XY था. हाँ सही है. तो पहले हाँ पुराना कंज्यूमर सरप्लस क्या था? दिस वन X प्लस, एक मिनट ये क्यों नहीं चल रहा? This was your old consumer surplus because of limited space. X plus Y. अब जब उसने $1 का प्राइस लगा दिया, now the new consumer surplus will be हाँ X रह गया, which means के change कितना आया? Y only. Y का change आ गया. और अगर वो बोलता है कि अनलिमिटेड स्पेस है, तब हो जाता Y plus Z. आ गई ना बात? जी जी. हाँ, क्योंकि प्राइस जीरो हो जाता है. The diagram shows the market for a good. If the government imposes a minimum price at OP1, ये minimum price लगाया government ने, and a maximum price at OP2, what would happen? हाँ भाई. What would happen? एक ही गुड पे दोनों लगा दिए. दोनों तो लगा दिए, और लगाए क्या है? मैक्सिमम प्राइस लगाए इक्विलिब्रियम से ऊपर, और मिनिमम प्राइस लगाए इक्विलिब्रियम से नीचे, which means दोनों इनइफेक्टिव है, क्योंकि मैक्सिमम लगता है इक्विलिब्रियम के नीचे और मिनिमम लगता है इक्विलिब्रियम के ऊपर. चेंज हो जाएगा. ए हुआ था. ए हो जाएगा. जब डी वाले का मतलब क्या है? डी वाले का there will be need to rationing by the government. गवर्नमेंट अलाउ करे, गवर्नमेंट ये बताए कि इतने यूनिट ये वाला बंदा ले सकता है, इतने यूनिट ये वाला बंदा इस प्राइस में.
Two goods X and Y have a cross elasticity of demand 1.8 XCD. Y and X क्या है 1.8 है 1.8 का मतलब है that these goods are substitutes. सही है पॉजिटिव होती है XCD तो substitutes होते हैं दोनों गुड इलास्टिक और इलास्टिक भी है हाँ good Y has YED of negative 1.6 और YED of Y is negative 0.6 मतलब inferior है. An increase in the both income of consumers and the price of good Y will have which combination of effects? अगर इनकम बढ़ रही है Y की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो इंफीरियर है. सही है. The quantity demanded for Y will fall. And now what will happen? Price of Y will have an increase in both consumer income and the price of good Y. और good Y का प्राइस बढ़ रहा है. जब good Y का प्राइस बढ़ेगा, what will happen to the quantity of X? The quantity of X will increase because the goods are substitutes to each other. They have positive XCD. Is that clear? यस अच्छा जी. What is price elasticity of supply? PES क्या होती है? C, sir. Comparison of the proportionate change in the supply, the proportionate change in demand? नहीं भाई. Percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. Demand थोड़ी होती D होगा. और Comparison of proportionate P change in supply to the proportionate change in demand. What does the assumption ceteris paribus mean when economists analyze the which demand for a good changes? क्या मतलब होता है इसका ceteris paribus का? assuming all things constant sir, only one variable is assumed to change while the other remains the same. हाँ. Only one variable can change. जैसे यहाँ पे प्राइस होता है हमारा कि प्राइस चेंज होगा और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. Only one variable is used to change while others remain constant or held constant. In which situation is the demand for a product said to be price elastic? BD greater than 1 कब होती है? हाँ भाई. When will the BD be greater than ऊपर 1? कह रहे हैं सर. क्वेश्चन क्या है? In which situation the demand for a product is said to be price elastic? 13. सर या फिर B है या फिर D है. या फिर B है या फिर D है. देखो अगर आपकी BD इलास्टिक है आपने प्राइस को रिड्यूस किया क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा इंक्रीज होगी ना. In the case of elastic goods this happens. आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. टोटल रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर. So it should be a fall in price increase the expenditure of the product. प्राइस को फॉल करते हो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. A rise in the price increases the expenditure when PD is less than 1. A fall in the price increases the quantity demanded. तो हमेशा ही होता है because of inverse relationship between price and quantity. A rise in the price reduces the quantity demanded. This happens. This also change of tells you about elasticity. सही है.
So in option A, अगर आप प्राइस को थोड़ा सा नीचे करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से नीचे हो जाएगी, नीचे इंक्रीज कर जाएगी, और आपकी प्राइस एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू विल इंक्रीज. Now look at question number 14. Which product is most likely to be provided only by the government? A. A. क्यों? क्योंकि वो public good है. सही है? National defense is an example of public good and it should be provided by the state. C. एक minute. Which term is given to an income received by individuals for which there is no corresponding contribution? जब कोई भी contribution नहीं होता economic activity में, वो चीज क्या कहलाती है? Transfer payments. So it should be D. A government policy favors older people at the expense of younger people. Which would be most likely to correct such an imbalance? हाँ भाई. An increase in expenditure on government provided pensions, an increase in government subsidies, training schemes for school leavers, an increase in the rate of income tax, और D क्या है? An increase in the rate of interest. हाँ, तो अगर आपने मतलब जवान लोगों को बेनिफिट देना है as compared to the older people, तो आपने क्या करना होगा? An increase in government subsidies and training scheme for school leavers. जो जवान लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, उनको वर्कफोर्स में इंडक्ट करने के लिए faster rate पे you will have to provide them training. Look at 17. A government to the producers of the product. What will be the likely effect of this? अगर आपने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत आसान है यार. सब्सिडी से क्या होता है? आपका सप्लाई कर्व डी होगा. योर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, आगे शिफ्ट हो जाती है आपकी सप्लाई. सही है. एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विल ऑब्वियसली फॉल बिकॉज आपको जो है वो कुछ प्रोपोर्शन प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट दे रही है टू द प्रोड्यूसर्स. व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंटिन्यूड गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ नेचुरल मोनोपोली? गवर्नमेंट जैसे ओन कर रही है नेचुरल मोनोपोली को, मतलब के इलेक्ट्रिक है या पाकिस्तान रेल पे, इट्स द नेचुरल मोनोपोली and has been run by the government. The government will guarantee competitive behavior. The government will ignore any losses made by the monopoly. The government will maximize the profit. And the government will take account external benefits की वजह से जो है गवर्नमेंट ओनरशिप लेके रखती है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कराची से एक ट्रेन जाती है लसबेला वसबेला कहीं वो बलूचिस्तान में, उस ट्रेन में बहुत कम लोग होते हैं, एक हफ्ते में एक बार चलती है, और वो स्टिल वो चलती है. क्यों? क्योंकि उसका एक्सटर्नल बेनिफिट ज्यादा है. सही है, उसका थर्ड पार्टी को बेनिफिट ज्यादा है. अगर गवर्नमेंट को ले जाना बंद कर देगी तो कनेक्शन आपसे जाएगा, यू विल लूज आउट द कनेक्शन विद दैट सिटी, और फिर ऑब्वियसली इसके बड़े नुकसान आते हैं. 19 देखो. व्हेन विल imposition of a tariff by a country on the goods and services of its major trading partner reduces the country's expenditure on imports? imports पे खर्चा कम हो जाए. जब आपने टैरिफ लगाया, इंपोर्ट पे खर्चा कम हो गया. Come on guys, it's very easy. सर बी है इसका. बी होगा. when the price elasticity of demand for imports is greater than 1. जब आपकी imports की PED जो है वो greater than 1 होगी, आपने टैरिफ लगाया, पहले आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ये था P0 टाइम्स Q0. अब इंपोर्ट हो गए महंगे हुए तो प्राइस उनका ऊपर गया और क्वांटिटी पीछे आ गई, which means कि एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा by this area. You will lose out this area 1. The importers will lose out this area and they will gain only this area. जाहिर है एक्सपेंडिचर कम हो गया. How will an increase in government spending on infrastructure affects aggregate demand and aggregate supply? हाँ भाई, अगर गवर्नमेंट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. सही है, दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी एंड द आंसर शुड बी सी. एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होगी बिकॉज जी इज द पार्ट ऑफ
एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा रहे हो तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. The table shows the amount of good सप्लाई इंक्रीज होगी. है. सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जाहिर है आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो ना. इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल आपकी इकोनॉमी का बेहतर हो जाएगा. कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, कम ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगेगा. The table shows the amount of good X or the amount of good Y that can be produced by a country. R and T if each uses all of its resources. सही है भाई. कंट्री R और T के बारे में हमारे पास है. अगर वो अपनी सारी रिसोर्सेज को यूज करें तो वो ये बना सकते हैं 80, 100 और 20, 80. What can be concluded? आप पहले आपको बताना पड़ेगा ऑब्वियसली रेशियोज क्या हैं इनके. कंट्री एक्स का देख लो भाई. सॉरी कंट्री एक्स बोल रहा हूँ, कंट्री आर का. They can produce 80x or 100y. और कंट्री टी का they can produce 20x और 80y. अगर एक x बनाए कंट्री आर तो उनको कितने छोड़ने पड़ेंगे भाई? ये क्या होगा? 1x is equals to 5/4 is 1.25y. If country R produces 1x, they will leave 1.25y. On the other hand, if country T produces 1x, they will be leaving 4y. So obviously, country R की opportunity cost low है in the production of x. वो सिर्फ 1.25 y छोड़ रहे हैं. They have opportunity cost, they have comparative advantage. सही है. अब देखो क्या होगा. कंट्री आर हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स. एक्स में तो है कंपैरेटिव, ये तो आपको पता है, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया. सही है. देखो एब्सोल्यूट कब होता है? एब्सोल्यूट जब होता है जब आप ज्यादा यूनिट्स बना सको दूसरे वाले से. अब ये बोल रहे हैं कंट्री आर हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई. वो वाई कितने बना रहे? कंट्री आर इज प्रोड्यूसिंग 100 वाई व्हाइल कंट्री टी इज प्रोड्यूसिंग 80. सो ऑब्वियसली दे आर प्रोड्यूसिंग मोर वाई. तो इनके पास एब्सोल्यूट भी है in the production of y और comparative है in the production of x. तो आंसर A सही होगा. Is that clear? सर B क्यों नहीं होगा? The country R has absolute advantage in producing x. ये तो सही है. R के पास absolute है x में. जो 80 बना रहा है वो 20 बना रहा है. लेकिन comparative नहीं है ना. y में comparative नहीं है. x में कंपैरेटिव. एक x की जगह 1.25 है. इसी वजह से b नहीं होगा. ये जो दूसरी स्टेटमेंट दी है b में वो गलत है. सही है. What is most likely to lead to persistent surplus in the country's current account balance of payment? बैलेंस ऑफ पेमेंट में persistent surplus आता रहे, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं ना, इंपोर्ट्स कम होते रहे. ये कब होगा? A low domestic saving rate and undervalued exchange rate, high protectionist policy, अंडरवैल्यूड करेंसी. अंडरवैल्यूड करेंसी. चाइना की तरह. सही है. आपने अपनी करेंसी को सस्ता रखा हुआ है ताकि आपके एक्सपोर्ट्स सस्ते हो, इंपोर्ट्स महंगे हो. इंपोर्ट्स महंगे होंगे, इंपोर्ट्स कम आएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, ज्यादा बिकेंगे इंटरनेशनल. The diagram shows Australia's terms of trade per quarter Q2 2014 to Q1 2017. ये क्वार्टर्स की आपको दी है. In which period did Australia's terms of trade decline and then improve? किस पीरियड में टर्म्स ऑफ ट्रेड पहले नीचे आए हैं और फिर इंप्रूव कर रहे हैं? देखो टीओटी क्या होता है. टीओटी अगर 100 से नीचे आ रहा है, सही है, तो इसका मतलब है कि टीओटी वर्सन ऑफ हो रहा है बेसिकली. So in which period did Australia's terms of trade decline and then worsen off, or decline and then improve? C होगा सर. ये वाला रीजन होगा. यहाँ से कहीं यूं आया और फिर इंक्रीज कर गया. तो क्वार्टर 2 2014 टू क्वार्टर 4 2014 नहीं, इसमें इम्प्रूव ही है. क्वार्टर
4 C होगा। 2015। हाँ एक मिनट, हाँ ये होगा, सी हो जाएगा सही, क्योंकि क्वार्टर 4 2015 से नीचे आए और फिर ऊपर चले गए 89.2 से 87.9 एंड देन 89.2. Look at question number 24. The diagram shows the country's aggregate demand 81 and aggregate supply AS1 curves. Since the world economic downturn 2007, some governments have reduced the labor cost and ensured interest rate remain unchanged. How would this most likely to be shown on the diagram? वो बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक डाउनटर्न जो आया, सही है, जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2007-8 का, उसके बाद सम गवर्नमेंट्स रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, उन्होंने लेबर की कॉस्ट कम कर दिया, जैसे नेशनल मिनिमम वेज कम कर दी, एंड इंश्योर्ड इंटरेस्ट रेट भी चेंज नहीं होंगे, सही है, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, इसी पे रहेंगे. इससे कौन सा वाला डायग्राम जो है वो मोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो लेबर कॉस्ट सस्ती होगी, एग्रीगेट सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, हाँ, और इंटरेस्ट रेट भी सस्ता होगा, तो इंटरेस्ट रेट वहीं रहेगा, तो एग्रीगेट डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. एग्रीगेट डिमांड नहीं चेंज होगी और पीछे भी नहीं जाएगी एग्रीगेट सप्लाई. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता तो एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. हाँ भाई, एन इकोनॉमीज एक्सचेंज रेट चेंजेस इट्स एक्सचेंज रेट एट टाइम टी, ये टाइम टी है, एक्सचेंज रेट उन्होंने चेंज कर दिया. व्हाट डज द जे कर्व शो हैपेंस एट टी एंड आफ्टर टी? जे कर्व हमें क्या बता रहा है भाई, टी से क्या हो रहा है, ये डेफिसिट में गया और फिर इंक्रीज कर रहे हैं. हाँ भाई, क्या कर रहे होंगे वो अपने एक्सचेंज रेट के साथ, इंक्रीज कर रहे होंगे डिक्रीज कर रहे होंगे? दे शुड बी डिक्रीजिंग देयर एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करो ताकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाए, इंपोर्ट्स महंगे हो जाए, सही है. एंड मार्शल लर्नर कंडीशन टू अप्लाई. तो जब मार्शल लर्नर कंडीशन अप्लाई होती है तभी तो आपके पास जे कर्व इस तरह का बनता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है कि पहले जो है वो थोड़ा गिरेगा करंट अकाउंट एंड देन इट विल इन द लॉन्ग रन इट विल मूव इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन. ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ निकल गया, इंक्रीज करने लगा बेसिकली, सही है. बस ये डायग्राम जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की बनाई गई. अगर इंसानों की तरह का जे कर्व बना देते तो ज्यादा आसानी से बच्चे गेस कर लेते. Question number 26. What will happen when there is an increase in consumer price index? CPI बढ़ गया, सही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज करे तो क्या मतलब है, महंगाई बढ़ गई होगी. An increase in the cost of living. एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. जब भी सीपीआई इंक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, या देयर विल बी फॉल इन द मनी वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ मनी नीचे चली जाएगी. Look at question number 27. What would not be included in Germany's balance of payment account? Germany के balance of payment में terms of trade. हाँ, क्या नहीं होता, टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं होता. टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट्स. ये तो एक इंडेक्स है, सही है, ये इंक्लूड नहीं होता. गुड जॉब. बाकी फॉरेन एड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. An economy has balance of payment surplus. BOP surplus export ज्यादा imports कम है, which it wishes to eliminate. लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि surplus कम हो जाए. In order to achieve this objective, which combination of policies will be most appropriate? कौन सी पॉलिसी ज्यादा appropriate होंगी? Depreciation of the currency. अगर आप करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ेंगे, सरप्लस इंक्रीज होगा. एन एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ये हो सकता है. एंड अ कट इन इंटरेस्ट रेट. आप अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करते हो ताकि एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाए, इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाओ ताकि लोग ज्यादा लोन्स ले लें, लोन्स लेके गाड़ियां इंपोर्ट करवा लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर वगैरह ये कर लें. ये हो सकता है. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Look at 29. The diagram shows the possible relation between degree of independence of the central bank and the level of inflation. ये आपको बता रहा है भाई
एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वाई एक्सिस पे एंड यहाँ पे डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब सेंट्रल बैंक कितना इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट की, उससे गवर्नमेंट की पॉलिटिकल उन चीजों को हटा के साइड में रख देता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या है, अगर लीस्ट है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बी क्या बता रहा है, जैसे जैसे हमारे यहाँ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है सेंट्रल बैंक की, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सी में क्या है, इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ रही है। और डी में क्या है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ रही है। विच रिलेशनशिप सजेस्ट दैट सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस इज इफेक्टिव वे टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? हाँ भाई, कौन सा वाला बता रहे हैं कि D. अगर हम सेंट्रल बैंक को खुद मुख्तार कर देंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? या इट शुड बी ऑप्शन डी। डी में हमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे सेंट्रल बैंक का इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट भी कम होता रहेगा। जाहिर है फिर सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा, काउंटर करेगा इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट की कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसमें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 30. Which change in economic circumstances is most likely to lead to a reduction in the rate of domestic inflation in an economy? Which change in economic circumstances most likely to lead to reduction in domestic inflation? आपके domestic inflation कम हो जाए, depreciation of the currency, reduction in the productivity, a worldwide recession, and increase in the direct taxes to finance increased welfare payments. Worldwide recession. हाँ सही, अगर आप पूरी दुनिया में ही रिसेशन आ गया तो क्या होगा, तब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सही है, सप्लाई शॉक आ जाएगा, सबके पास एवरेज इनकम्स कम हो गई, एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। सही है, इंपोर्ट भी कम हो जाएंगे, तो ना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा ना डिमांड पर इन्फ्लेशन होगा, इफ देयर इज अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन इन द इकोनॉमी।